Hi guys, hope all of you are doing great. And guess what? We are back with one more VIP session. Yes, guys. And today, what are we gonna do is कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा पेन मेरा. Yes, what are we gonna do is guys, live process में circulation and urine production करेंगे. ठीक है? तो guys ये chapter मैं already करा चुका हूँ in great detail. But today I am gonna be taking these two topics, है ना? And tell you what type of questions which come from these topics. ठीक है? It will be like a quick revision plus problem focused revision, है ना? Everything is hard before it is easy. ठीक है? Yes guys, trust me, if you are finding a chapter difficult, for example heredity is difficult, ठीक है, trust me, you need to focus on this. For example, when I was in my 11th and 12th class, I used to find this permutation and combination as very difficult. मुझे लगता था यार ये हो ही नहीं सकता. But trust me guys, once I got the hang of it, मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैं लगा रहा and guess what, वो मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक बन गया. ठीक है? Yes, everything is difficult unless until you try it, है ना, or make it easy. Yes guys, there is an INMO camp for IOQM, International Level Mathematics Olympiad Camp, if I'm not wrong. Guys, बहुत ही amazing है. 10 topic wise classes from 21st of January. Please do attend it. Yes, national level INMO camp. Okay, Lohit Jindal sir, I know him, he's so amazing. Chetan sir, I don't know him, but yeah, he should be amazing. Abhay sir, I know him also. They both are very amazing. I have not personally met Chetan Garg sir, but if he is with them, trust me guys, they're gonna be rocking team. I promise you this. And yes, do attend it. National level INMO camp guys, you can go to the link description में जाके click कर लो and you can download the preparation kit only. Guys, it's so amazing. ठीक है? अगर आप practice कर रहे हो मैथमेटिक्स ओलंपियाड को डाउनलोड कर सकते हो. It is all free. Moving forward, let's talk about circulatory system. Guys, whenever we talk about circulatory system, what are we talking about? We are talking about heart and the blood vessel. ठीक है, मतलब जो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, है ना बेटा. अब हार्मोन को यहां से कहीं जाना है तो कैसे जाएगा? ब्लड से. आई हैव जस्ट हैड मिल्क, इफ इट हैज टू गो फ्रॉम माई स्टमक टू माई मसल्स, हाउ विल इट हैव टू गो? इट विल हैव टू गो थ्रू, यस गाइस, ब्लड. ठीक है, तो दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर हियर, है ना. मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस, यस, transport nutrients and oxygens. What does it do? Transportation. It helps in transportation of nutrients and air. खाना खाया, यहां से मेरे मसल तक कैसे जाएगा खाना? From blood. सांस ली, ये यहां से मेरे ब्रेन तक कैसे जाएगी? Through blood, right? So these are helpful over here. Then body requires an efficient system. The body requires an efficient system for transportation of nutrients, gases and waste. और वो कौन सा सिस्टम है हमारा? वो हमारा सिस्टम है दिल का सिस्टम. वो हमारा सिस्टम है दिल वाला, और वो है हमारा फेवरेट हार्ट. हार्ट हेल्प करता है दिल की चीजों से, चीजों को इधर उधर पहुंचाना हमारी बॉडी में. वेरी गुड सर. अब हार्ट गाइस देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें होती हैं. फर्स्ट, एक होता है ब्लड. 2, we have blood vessels, and 3, we have our favorite heart. There are 3 things which are very important: blood vessels and heart. These are the 3 things which make circulatory system. These are the 3 things which make circulatory system of our body. ठीक है, 3 चीजें हैं. RBC, platelets and WBC are part of blood. अब ये जो पहले एक करके बारे में, ब्लड के बारे में ही पढ़ेंगे, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले ब्लड देख लेते हैं. इस ब्लड में 2 चीजें होती हैं, होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, है ना. तो ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? दे आर फ्लोटिंग इन द प्लाज्मा. समझ पा रहे हो? जैसे कि मैंने बताया था, वाटर का एग्जांपल दिया. वाटर बॉटल में अगर मैं आई पुट रेड सैंड, येलो सैंड एंड व्हाइट सैंड एंड शेक इट, तो ऑल दीज सैंड्स है ना प्रेजेंट इन द वाटर बॉटल. व्हाट आर दे मेकिंग गाइस? द वाटर इज plasma. Will the sand mix in water, dissolve in water? No. The sand particles are WBC, RBC and this thing. Are you getting it? That's why. So, but there are 3 types of blood cells. RBC का करता है. RBC guys helps in transportation of oxygen. RBC के अंदर we have hemoglobin. RBC के अंदर we have hemoglobin which helps in transportation of oxygen. Then WBC हमें पता ही है. These are called as soldiers of the body. These are called as soldiers of the body. What do? They help in protection.
they help in protecting our body against disease causing organisms. Yes, they are called as soldiers of the body. They protect our body from diseases. And yes guys, RBC देख लिया, platelets देख लिया. Platelets, what do the platelets do? They help in clotting of the blood. What do they help in guys? Platelets help in clotting of the blood. ये blood को clot, मतलब मेरा cut हो गया, I got cut from here, blood is oozing out, then it helps to fix it and help in preventing much blood to come out of it, मतलब blood को loss को रोकेगा. ठीक है, वेरी गुड. आगे चलते हैं. ब्लड के बारे में पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे फिर चलो हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. ये हमारा हार्ट है, ठीक है बेटा. अब हार्ट के बारे में पढ़ना है ना, तो इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं. ठीक है, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे दिखेगा आपको, डायग्राम बनाऊंगा तो मैं. ठीक है, थोड़ा डॉटेड वाला हो गया है, बट एनीवेज वी विल ट्राई लाइक दिस है ना. वी हैव like this. ठीक है, then yes है ना, and we have a aorta coming out of here. Yes, and this is a pulmonary artery going out. ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना बच्चे. बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व. वी हैव pulmonary vein over here, this is aorta है ना, and this is what, this is yes guys pulmonary artery. yes guys, pulmonary vein blood लेके आता है, pulmonary artery यहाँ से blood को लेके जाता है. ठीक है, this is what, oh sorry, aorta तो मैंने बोला यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था मुझे. yes, this is how it is guys. You can draw this diagram. I have explained it to you already कि कैसे बनाना चाहिए. let me explain this with the help of a block diagram. ठीक है, अभी मतलब इसका फ्लो हम देखेंगे. अभी डायग्राम हार्ट का समझ लो. व्हाट आर द हार्ट मेड अप ऑफ गाइस? इट मेड अप ऑफ टू चेंबर्स. द अपर चेंबर्स आर कॉल्ड एज एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम. द लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल. एंड बोथ ऑफ देम आर attached to each other by valves. Left atrium and left ventricle are joined by each other by bicuspid valve. Between right atrium and right ventricle, we have a tricuspid valve. R for right, tri for R. That is tri. Tri में R है, तो it is present on the right side. Bicuspid valve is present on the left side. So do not get confused over here, guys. We will do it in more detail. अभी देखते हैं. Let us understand blood vessel first. What is a blood vessel? है ना बेटा, blood vessel are of three types. These are the pipes. Imagine you are a building. There are many pipes flowing in your body. These pipes are what? Blood vessels. The pipes, there are three types of pipes guys. There is artery, there is vein in your body, and arteries, veins and capillaries. Yes guys, we have arteries, veins and capillaries. These are the three types of blood vessels present in our body. Arteries, veins and capillaries. Very good. Now these arteries, yes, arteries, what do? They generally carry oxygen rich blood. They generally carry oxygen rich blood from the heart to all the parts of the body. याद ध्यान रख लेंगे. Veins, they carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body to the heart. समझ रहे हो? So this is my heart. Artery is taking the blood away from the heart to all the organs, and vein is bringing the used blood back to the heart. Artery is taking blood away from the heart, vein is bringing blood towards the heart. Yes, this is clear. But guys, there is an exception. All the arteries except pulmonary artery. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. Please note it down, it will definitely come. Similarly, pulmonary vein is the only vein which carries oxygen rich blood. Very, very, very important है ये. ठीक है, आगे चलते हैं. Yes. फिर capillaries guys. Capillaries क्या करते हैं? They are the site of exchange. मतलब देखो बेटा, ये देखो, ये arteries आया, oxygen rich blood लाया, है ना? It has brought oxygen rich blood. This oxygen rich blood बेटा, यहाँ पे cells होते हैं. Imagine there are cells. अब ये ऑक्सीजन आया ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे चले जाएगा सेल में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा. ऑक्सीजन विल गो ओवर हियर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन विल गो एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
Are you getting the point? Oxygen will go over here, carbon dioxide will come. Oxygen will go, carbon dioxide will come. Oxygen will go, carbon dioxide. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? Exchange is happening, and by the time the blood goes till here, it has become carbon dioxide rich. When it entered over here, it was oxygen rich. By the time it exits, so from there, it has become carbon dioxide rich. Yes, I hope you're understanding. Give me a high five if you have understood this. Give me a high five, guys. Yes. So moving forward on this, yeah. है ना, तो ये हमने समझ लिया है. Apart from this, guys, you need to understand. देखो, arteries are in direct contact of the heart. ठीक है? Arteries are in direct contact of the heart. That is why they are thicker. If you can see, they have a thick wall. Arteries, they are direct contact. The heart is pumping. So arteries are very thick so that they are good attached. मतलब if it is not strongly attached, then it will break off. है ना बेटा? Like it's like a pipe. ज़्यादा pressure डाल तो pipe टूट जाएगा. So that is why they have a very strong. Can you see this thick wall? If you can see, this is the thick. This is a thick wall. Here, vein, if you see, देखो, vein इतना धीरा ढीला सा है. मतलब it has a big lumen. This is the lumen बेटा. Lumen मतलब जहाँ से blood is flowing. It is narrow. Here, broad lumen. है ना बेटा? Whereas when you see capillaries is just one cell layer thick. मतलब वो बहुत ही थिन है. एक है कार्डबोर्ड का पेपर, एक है नॉर्मल पेपर वाला, और एक होता है बहुत ही थिन पॉलीबैग नहीं होता वैसा वाला. Are you getting the point? So this is the difference. Cross section of the artery, vein and the capillary. एक और चीज guys, veins have walls. Veins में क्या होता है? Walls होता है which prevent the backflow of the blood. मतलब देखो, मतलब see, this is my heart, है ना बेटा? So the heart is pumping the blood out. The heart is pumping the blood out. The heart is pumping the blood out. And ये वापस आ रहा है. CO2 rich blood यहाँ पे आ रहा है वापस. है ना बच्चे? CO2 blood वापस आ रहा है. Now guys, see. Now very well see. यहाँ पे तो blood इसको push कर रहा है. Blood is pushing out. बाहर जा, बाहर जा. But no one is pushing the blood in the vein. मतलब vein को कोई push नहीं कर रहा है. यहाँ से जो blood आ रहा है इस पे कोई pressure नहीं है. तो there is a possibility ये वापस भी जा सकता है. To prevent this, we have walls over here. We have walls, मतलब which does not let the blood go down. Which does not let the blood go down. It will ensure that it moves only in the upward direction. ठीक है? तो ये prevent करता है. Wall क्या करता है? Prevent. आपको कैसे यहाँ पे क्यों नहीं चलता? बेटा यहाँ पे तो ये ताकत लगा तो रहा है. इसकी blood की मजाल ही नहीं है कि वापस आ जाए. ठीक है? तो these are the things. तो guys exam में क्या आएगा? What are the difference between arteries and veins? Or what are the types of blood vessels? What is the difference? Arteries, they have oxygenated blood, they carry oxygenated blood except pulmonary artery, they move blood from away from the heart, right? And they have a thicker wall. They do not have valves. Thick wall होता है, VALV, valve नहीं होता है. Veins, they take blood towards the heart, they carry deoxygenated blood except pulmonary vein, and they have valves. Capillaries, they are one layer thick, है ना? They are the site of exchange, है ना? They do not have valves also. They are very thin layer. Very good. अब बड़ा सर्कुलेशन इन मैमल्स पढ़ लेते हैं. ठीक है guys? Before that, do you guys know there is this amazing session, live session on NCERT 11th and 12th between Varsha ma'am. This is Varsha ma'am, she teaches mathematics. This is me, so not me, कोई जानता है इसको कौन है ये? तो ये अंकल बायोलॉजी का वॉर करने वाला है. तो guys, do come and watch on Saturday 8:30 PM. It will be amazing session. So do come and do not forget to watch it. And yes, let us look at this. Let us look at this circulatory system. But this is my heart. This is left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. अब बेटा देखो, जो lungs है ना, lungs से blood आता है into the left atrium. कौन लेके आता है? Pulmonary vein लेके आती है. मतलब lungs से blood कौन लेके आ रहा है? Pulmonary vein. कौन सा blood है? यहाँ पे देखो, lungs में ऑक्सीजन आपने breathe करा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया lungs में, और ये lungs से इस blood में आ गया. ठीक है? फिर ये पल्मोनरी वेन कहां पे है? लेफ्ट एट्रियम में. फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से बाहर निकल के ये आपकी सारी बॉडी के ऑर्गन जाएगा. मतलब आपके शोल्डर पे जाएगा, आपके आर्म्स में जाएगा, आपकी किडनी पे जाएगा, सब जगह जाएगा. फिर सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या होगा? कैपिलरी, सब जगह कैपिलरीज. इन्होंने यूज करा ऑक्सीजन को, यूज करा और वापस कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड. समझ रहे हो? फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहां से आया? ये आ गया राइट एट्रियम पे. कहीं देखो, यहां से तो पल्मोनरी वेन लेके आया था यहाँ पे. अब इसको बाहर कौन लेके गया था? आयोटा.
फिर अब ये यहां से राइट एट्रियम तक कौन लेके आया है? वीना कावा। वीना कावा इसको लेके आता है। फिर यहां से ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल पे जाता है और यहां से फिर ये यू टर्न मार के वापस लंग्स पे चले जाता है। यहां पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करते हो आप, फिर वापस दोबारा ऑक्सीजन लेते हो ताकि यहां से चलना शुरू कर दे। गेटिंग इट? इजंट अमेजिंग? तो इसी तरह से गाइस दिस सर्कुलेटरी सिस्टम फ्लोस, है ना। अब देखो इसको ना हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हाई? बिकॉज द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेशन। वी कॉल इट डबल। इसमें दो पार्ट होता है बेटा, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, we have pulmonary circulation, and the second part is systemic circulation. We have two parts, that is pulmonary circulation and we have systemic circulation. What is pulmonary beta? मतलब related to lungs. Lungs से कौन कौन connected है? Left atrium connected है, हाँ सर। right ventricle connected है, हाँ। तो we will start from your right ventricle से होते हुए pulmonary artery के थ्रू lungs पे जाता है, lungs से pulmonary vein, और ये this forms pulmonary. Pulmonary मतलब बेटा lungs, पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है। तो जो लंग्स से कनेक्ट है, कौन कौन कनेक्टेड है? पल्मोनरी वेन कनेक्टेड है, हाँ। पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है, हाँ, है ना। लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड है, हाँ। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड है, हाँ। बस तो ये हो गया पल्मोनरी सर्किट। सिस्टमिक सर्किट देखो कहां से स्टार्ट करो? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहां से गए आयोटा के थ्रू ऑर्गन्स, ऑर्गन से फिर ये क्या? वीना कावा, वीना कावा से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम तक। समझ पा रहे हो? मतलब यहां से यहां तक लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से राइट। दिस फॉर्म्स द डबल सर्कुलेशन, वी कॉल इट एज double circle because blood flows through the heart twice in one cycle. देखो ब्लड आया यहां से, ब्लड हार्ट में एंटर करा, निकल गया, क्या एक साइकिल खत्म हुई? नो, वन साइकिल विल बी कंप्लीटेड व्हेन इट गोज बैक ओवर हियर। फिर ये वापस हार्ट में गया, फिर वापस निकला, अब साइकिल कंप्लीट हुई। देखो पहले अंदर आया, फिर निकल गया, एक बार निकल गया, फिर दोबारा अंदर आया, फिर निकला। तो इन वन साइकिल द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी गुड। Yes, so this is what is explained over here, guys. Lungs से निकलता है, pulmonary artery से left atrium, फिर left ventricle, aorta से organs, organ से right atrium, right ventricle, pulmonary artery और lungs. This is very very important, guys. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिम्फ बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है। आपके लेवल में बताता हूँ व्हाट इज द लिम्फ, है बेटा। व्हाट इज द लिम्फ? इट्स अ वाइट कलर फ्लूइड फ्लोइंग इन द लिम्फ वेसल। एक व्हाइट कलर का फ्लूइड है जो लिम्फैटिक नाम के वेसल्स में फ्लो करता है। मतलब देखो ब्लड और ब्लड वेसल्स है ना, उसी तरह एक और पाइप का सिस्टम है जिसमें व्हाइट फ्लूइड फ्लो करता है। एक में एक पाइप का सिस्टम है ब्लड सिस्टम, उसमें ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। एक और सिस्टम है जिसमें पाइप्स हैं जिसमें व्हाइट फ्लूइड फ्लो करता है। ये व्हाइट फ्लूइड कैरी करने वाली पाइप्स हैं, इनको कहते हैं हम लिम्फ वेसल। जो ब्लड कैरी करते हैं उसको कहते हैं हम ब्लड वेसल। यस, इज दिस क्लियर गाइस? वेरी गुड। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो व्हाइट फ्लूइड वाली क्या है? हमारी लिम्फ वेसल, है ना। आगे देखते हैं तो ये क्या होता है गाइस? द व्हाइट फ्लूइड इज द लिम्फ व्हिच फ्लोज थ्रू द lymphatic vessels. The white fluid flows through the lymphatic vessels. Now beta, what is the function? The function is very important. You should know about the functions. What the functions are very important. What are the functions? The first one is it provides immunity. It provides immunity. Second thing, it helps in transportation of fat. It helps in transportation of fat. It provides immunity and it helps in transportation of fat. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये याद कर लेना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद कर लो। इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट दिस लिम्फ प्रॉपर्ली, आई हैव टॉट दिस ऑलरेडी, ठीक है। आप एक बार सर्च करो वेदांत, तो 9th and 10th चैनल पे आपको मिलेगा ये, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। देन यस गाइस, तो एज यू कैन सी ओवर हियर, होता क्या है बेटा? देखो ये ब्लड आया ना यहाँ से, तो जब एक्सचेंज हो रहा होता है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। See in the organ the exchange is happening. ये blood capillaries हैं, ये arteries I have come, vein has come over here, there's a artery over here, है ना, vein over here. तो बेटा blood आया है, यहाँ पे exchange हो रहा है, तो क्या होता है? Some fluid gets leaked. This leaked fluid is put back over here
into the circulatory system. If you can see, देखो ये आया blood artery है ना, यहाँ पे कुछ fluid leak हो गया, fluid leak हो गया, तो this leaked fluid is put back into the vein over here. This leaked fluid is put back into the vein. So this is a function of lymphatic system. और basically ये leak fluid क्या होता है, प्लाज्मा ही लीक होता है, प्लाज्मा और WBC लीक हो जाते हैं and they put it back. And when they are traveling in this, इस रास्ते में ये क्या करते हैं, ये रास्ते में फैट को उठा लेते हैं, है ना, और अगर कोई डिसीज कॉजिंग एजेंट मिल जाता है उसकी भी पिटाई कर देते हैं, तो लाइकवाइज दैट, है ना. वेरी गुड गाइस, वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, इट्स एन अमेजिंग कोर्स, ट्रस्ट मी. एंड यस, can get unlimited live classes and quizzes over here. And yes guys, compete with the students of the world. And yes, you have live interactive quizzes. And yes, premium downloadable content, handwritten contents are there, doubt solving, tests and assignments. And definitely guys, 500 micro courses and crash courses are available over there. More classes at a lesser price. And yes guys, you can use this code to get extra 50% discount on 14th to 17th. 14th to 17th of this month. Yes, because of Sankranti we have 50% off. Yes guys, I guess you will get the course for 4,900 rupees generally. Yes, so you can check out the prices guys. You can use the code ARPRO to get extra 50% discount. Let us talk about excretory system now guys. What is excretory system? It is the system which helps in remove. अच्छा, पहले भी को बताओ कितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को. इतनी सर ताकत लगा के पढ़ा रहे हैं गाइस, है. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट्स एन अमेजिंग चैनल गाइस. वेदांतु 9th and 10th ऑल्सो सब्सक्राइब टू वेदांतु 11th and 12th ऑल्सो, है ना. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही दिल से पढ़ाते हैं, बहुत ही एनर्जी लगा के पढ़ाते हैं, है ना. तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. इसमें गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन. We are talking about kidney and urine formation. Yes. So guys, but क्या बस यूरिन है एक्सक्रीटरी सिस्टम? बेटा एक्सक्रीशन इज मेनली रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा हमारे लंग से कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वेस्ट. मतलब वो जरूरी नहीं है ना. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करोगे? आपके सेल्स में रेस्पिरेशन हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, उसका क्या करोगे? उसको निकालना ही तो है. दैट इज ऑल्सो वेस्ट. स्किन के थ्रू भी, स्किन से क्या होता है बेटा? स्किन से वाटर, सॉल्ट और यूरिया भी निकलता है. स्किन से वाटर, सॉल्ट और यूरिया भी निकलता है. देन लिवर में अमोनिया बनता है. दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू यूरिया बेसिकली, है ना. और यूरिनरी ट्रैक्ट से हम बेसिकली यस गाइस यूरिन को निकालते हैं. तो दीज आर द मेनली गाइस, लंग्स और स्किन आर आल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यू कैन से. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं गाइस. दे विल आस्क यू व्हाट इज द ह्यूमन सिस्टम मेड अप ऑफ. यस गाइस, किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी. देन वी हैव yes guys, urinary bladder, renal artery, renal vein. Yes guys, so we have kidney over here, we have ureters, we have urinary bladder, and this is urethra. This is urethra. यही है. फिर renal arteries and renal veins. We have renal आर्टरीज और रीनल वेन. ठीक है, दीज आर द थिंग, है ना. बहुत ही इजी है गाइस. इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए. देखो सेम चीज, किडनी का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. यूरेटर का फंक्शन क्या है? कैरी यूरिन फ्रॉम हियर एंड स्टोर इट इन द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर कितना स्टोर करता है? यूरेथ्रा रिमूव्स इट आउट ऑफ द बॉडी. रीनल गाइस, रीनल, व्हेनेवर यू सी रीनल, रीनल मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी. रीनल मींस रिलेटेड टू किडनी, है ना. वी हैव रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. आगे चलते हैं. Next guys, unit of kidney, nephrons. We say nephrons are what? Units of kidney. What are nephrons guys? Nephrons are units of kidney. मतलब हर किडनी में गाइस मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है. मिलियन नेफ्रॉन इस किडनी में, मिलियन नेफ्रॉन इस किडनी में. ये क्या करते हैं मिलियन में? ये छोटे छोटे क्या करते हैं गाइस? दे प्रोड्यूस यूरिन. हर इसमें किडनी मिलियन है, इसमें मिलियन, तो हर ईच वन इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल यूरिन एवरीवेयर.
है ना बेटा। तो दिस स्मॉल स्मॉल यूरिन मेक्स अप बिग एंटायर चंक ऑफ यूरिन, ठीक है। जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे बूंद बूंद यूरिन हर एक नेफ्रॉन बनाता है और पूरा यूरिन का सागर बन जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। अब इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ इट लाइक दिस, है ना। स्नेक 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 स्नेक, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है बेटा। देन व्हाट वी हैव ओवर हियर, ग्लोमेरुलस, then we have Bowman's capsule, then we have PCT over here, we have Henle's loop, we have DCT, and this is guys collecting duct or collecting tubule. These are the components which we have, है ना बेटा। Glomerulus, Bowman's capsule, PCT, Henle's loop, DCT and collecting duct, है ना बेटा। अब देखो होता क्या है ना इसमें, and these two blood vessels are, this is afferent arteriole, afferent, and this is efferent arteriole, afferent arteriole and efferent arteriole। तो होता क्या है ना बेटा, देखो ये ब्लड आता है, ब्लड आता है यहाँ पे आता है ऐसे, इट गेट्स फिल्टर्ड, इसका फिल्ट्रेट आ जाता है और बचा हुआ ब्लड यहां से निकल जाता है, ठीक है। अभी जो फिल्ट्रेट होता है ना बेटा, इसमें यूरिया होता है, मतलब द होल पर्पस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, और दिस सिस्टम इज रिमूव यूरिया फ्रॉम द बॉडी, है ना। यूरिया को निकालना, यूरिया क्यों निकालना है बेटा, वो ना टॉक्सिक हो जाता है, इट इज टॉक्सिक, इट विल किल, स्टार्ट किलिंग द सेल्स, तो ये रिमूविंग यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बेटा। तो वी स्टार्ट रिमूविंग यूरिया फ्रॉम हियर, है ना। फिल्ट्रेट, द फिल्ट्रेट कंटेन्स व्हाट, द फिल्ट्रेट कंटेन्स यूरिया। अब बेटा ये पीसीटी, हेनलेस लूप और डीसीटी में क्या होता है, सम इंपॉर्टेंट आइटम्स अलॉन्ग विद यूरिया एंटर दिस फिल्ट्रेट, उसको रीअब्सॉर्ब करना होता है, वो जरूरी होता है, दैट इज डन ओवर हियर पीसीटी डीसीटी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग क्या करते हैं, अगर बॉडी में आयंस ज्यादा हैं तो आयंस उसमें डाल देंगे, आयंस का में तो निकाल भी लेंगे, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दे डू सेक्रीट आयंस एंड पुट इट बैक इनटू द यूरिन आल्सो, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन फिर डाल देते हैं टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस इन द यूरिन। तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज filtration, ultrafiltration we call it as, second step is reabsorption, tubular reabsorb कर देता है, and the third step is guys, the third step is yes tubular secretion, tubes क्या करते हैं, कुछ secrete करके चीजों को डाल सकते हैं, yes this is there, yes। तो guys filtration कहाँ पे होता है, filtration happens in the Bowman's capsule, if you can see, ये देखो ये वाली जगह पे, यहाँ पे filtrate होता है, ये जो बाउल लाइक थिंग है ना, इसको हम बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं, और यहां पे ये जो है ना कलेक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, मतलब ब्लड कैपिलरीज का खुचड़ मुचड़ करके रखा हुआ है, मतलब इमेजिन अ बाउल, ये बॉमन्स कैप्सूल हो गया, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का से गुच्छा है, ठीक है। द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड ओवर हियर, वेयर इज इट फिल्टरिंग, बॉमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस पे, यहाँ पे फिल्टर है, ग्लोमेरुलस पे फिल्टर हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड, है ना बच्चे। तो यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, देन यूरिन फॉर्मेशन का मैंने बताया था 3 स्टेप्स होते हैं गाइस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द फर्स्ट स्टेप इज फिल्टरिंग, सेकंड स्टेप इज अब्सॉर्बिंग एंड द थर्ड स्टेप इज ट्यूब्स सेक्रीट एंड पुट आयंस इनटू द दिस थिंग। देन स्टेप 1 is ultra filtration, as I have told you, absorption, filtering the blood to separate the urea containing filtrate, मतलब वो प्लाज्मा होता है मेनली बेटा, प्लाज्मा विदाउट WBC, RBC और ब्लड सेल्स, प्लाज्मा विच हैज यूरिया, प्रोटीन्स और सम अमीनो एसिड और ग्लूकोज ऑल्सो हो सकता है, बट ज्यादा होगा तो ग्लूकोज मतलब क्या है, यू हैव डायबिटीज, ओके, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, प्लाज्मा होता है मेनली। देन एज यू कैन सी गाइस, इट हैज कम ओवर हियर, देन द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर अब्सॉर्ब बैक, सी दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अब्सॉर्ब कर लिया वापस, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन, सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें थी बॉडी के लिए और गलती से यहां पहुंच जाती है, दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक। Then step 3 guys, secretion. These tubules, what do? They put something into the filtrate. Why? To maintain ionic balance. Guys, ionic balance maintain करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के सर क्यों इंपॉर्टेंट है? बेटा देखो ionic balance पता है क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में ना बहुत ज्यादा पोटेशियम आयंस होता है, सोडियम आयंस होते हैं। सिमिलरली आपकी मसल एक्टिविटी में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आयंस यूज होते हैं।
तो इनका सही कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट कॉन्सेंट्रेशन। तभी अगर आपको लूज मोशन हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो दे आस्क यू टू ड्रिंक नींबू पानी और ORS सोल्यूशन पियो। क्यों? क्योंकि आयंस होने चाहिए, अगर आयंस नहीं होंगे तो पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी। आगे चलते हैं। Yes guys, so as I told you, glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion, and water also is absorbed. Beta. Nearly, like all the water is absorbed. 99% of water is absorbed over here. बहुत ही कम, 180 liters get filtered guys. आपका blood बहुत ज़्यादा filter होता है, उसके बाद जाके थोड़ा सा यूरिन बनता है। ठीक है, अब एक होता है हेमोडायलिसिस। अभी हेमोडायलिसिस क्या होता है बेटा? इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी। अब कुछ लोगों का किडनी काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा उनकी बॉडी में? जिसका इस यूरिया अक्यूमुलेट हो जाएगा। यूरिया अक्यूमुलेट हो जाएगा, मैंने कहा गलत बात है, वो तो टॉक्सिक है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज गाइस, हम क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल का हम क्या करते हैं, वी टेक आउट हिज ब्लड एंड पुट इट इनटू अ मशीन। उस इंडिविजुअल का ब्लड निकाल के मशीन में डालते हैं। इस मशीन में डाल के इसका सारा यूरिया निकाल के इसको वापस दे देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मशीन होती है डायलिसिस मशीन। आपने सुना होगा ना, डायलिसिस करवाने जा रहे हैं, ये मशीन होती है बेटा, डायलिसिस मशीन। इसमें क्या करा हमने, इसका ब्लड लेके इसमें डाला, इसको प्योर करा और वापस भेज दिया। आपको सर ऐसा मशीन में आप करते क्या हो? बेटा मशीन में एक्चुअली क्या करते हैं, सी मशीन में देयर आर ट्यूब्स, सेलोफेन ट्यूब, वी कॉल देम एज सेलोफेन ट्यूब्स। These tubes guys, what happens to these tubes is, है ना, these tubes are put in a fluid, एक fluid में होता है, and ये जो fluid है ना, इनका composition is similar to that of the blood except यूरिया। समझ रहे हो? मतलब एक ट्यूब है, ट्यूब फ्लूइड में सब चीज है ब्लड जैसी, बट यूरिया नहीं है। और ये जो ट्यूब है ना, ये सेमी परमिएबल है। तो जैसे ही ब्लड इसमें से जाता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया कहां पे? अंदर जाता है, ट्यूब के बाहर कम है। तो फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, ट्यूब के अंदर से यूरिया बाहर चले जाता है फ्लूइड में। तो यूरिया निकल गया ब्लड में से। अब ये ऐसे घूम फिर के ये ऐसे सारा यूरिया निकल जाता है, फिर हम इसको डाल देते हैं, वापस इसको दे देते हैं। बट हमें क्या करते रहना पड़ेगा? ये जो फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। डायलिसिस मशीन के अंदर कौन सी फ्लूइड होती है? डायलिसिस फ्लूइड होती है। थोड़ी देर के बाद मुझे उस डायलिसिस फ्लूइड को रिप्लेस करते रहना पड़ेगा ताकि ब्लड प्यूरिफाई होता रहे, क्योंकि उसमें भी तो फिर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ना। एक पॉइंट के बाद फिर ये ब्लड में से यूरिया निकलना बंद हो जाएगा, है ना, वापस नहीं जाएगा बट बंद हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप रिमूविंग, रिप्लेसिंग इट, है ना। इज इट अमेजिंग? और ये प्यूरिफाइड ब्लड आई कैन पुट इट बैक ओवर हियर, है ना बेटा? यस, है ना। देखो ये यूज फ्लूइड है, ये नया फ्लूइड ये जा रहा है, पंप कर रहा है, ये यूज फ्लूइड यहाँ से आ रहा है। देखो ये पंप करा, ये इसका ब्लड निकाला, फ्लूइड से निकाला न्यू फ्लूइड, ये ओल्ड फ्लूइड यहाँ से निकल गया, और ये यूज ब्लड मतलब प्योर ब्लड इज पुट इट बैक। यस, great job. Yes guys, so that's it for today. Do not forget to use this code ARPRO to get extra 50% discount. And yes guys, you can follow me on Instagram, that is Amrit_RJ. Like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, and do not forget to subscribe to the channel guys. Yes, Vedantu 9th and 10th channel. It's an amazing channel. We are bringing up so much content, and there are gonna be Menti Wars. Did you hear about it? Menti Wars होने वाले हैं भैया, पता है आपको इस बारे में? Do let me know if you know about Menti Wars or not, and keep smiling, keep loving, and do follow us tonight 8 PM on, yes guys, Vedantu 11th and 12th channel also. I'll see you there. Bye bye. Have a great day. Take care. Love you all.